Good morning dear students, this is Anurag Kumar Dubey, chemistry teacher from Subrasingh Children Academy. In last lecture we discussed about exception of octet rule. Today we are going to study a new topic, Lewis structure. Lewis structure. This is an important topic. You all taught this topic in class 10th, okay, but Lewis structure is very important. Why Lewis structure is important? Because in every chapter required to make Lewis structure of any compounds, okay. So in this topic, it means Lewis structure, we will write, we will draw Lewis structure of different compounds, okay, like as ionic compounds are, covalent compounds are organic compounds. But for writing Lewis structure, we should learn some rules for Lewis structure, okay. First, rules for selecting central atom. Rules for selecting central atom, okay. For example, suppose that H2O, okay. In H2O, who is central atom? How we can select central atom in H2O molecules, okay. The rules for selecting central atom. First rules, atom should be present in least number, okay, least number. It means you can say in any molecule, that atom has lowest number, we call them central atom, okay. तो central atom should be least number. क्या होना चाहिए? Least number. In H2O molecule you can see oxygen present in least number like as a 1, okay, and hydrogen is 2. So atom should be least number, that is central atom. And other, electronegativity should be lower, atomic number should be higher, These conditions like as least number, electronegativity lower and atomic number higher, now these conditions, those atom who is follow these conditions, that is central atom, okay. Second, hydrogen and fluorine cannot be central atom, hydrogen and fluorine cannot be central atom. कभी भी हाइड्रोजन और फ्लोरीन किसी भी मॉलिक्यूल्स के सेंट्रल एटम नहीं हो सकते हैं, ओके. एंड थर्ड, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, these elements can be central atom, है ना. These atom can be central atom. ये सभी atoms central atom हो सकते हैं. Phosphorus, maximum covalency of phosphorus is 3 and 5. Why? Phosphorus can make 3 bond like as a PCl3 and PCl5, okay. PCl3 में 3 bond and PCl5 में 5 bond, okay. तो मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी हो सकती है फास्ट का? 3, 5. सल्फर का कितना हो सकता है? 2, 4, 6. Why? Because balanced cell has 6 electrons. Sulfur atomic number 16, 2, 4, 2, 8, 6.
if there is a 6 electron, तो maximum covalency can be 2, 4, 6, and chlorine 1, 3, 5, 7. Outermost shell has 7 electron. Carbon only 4. Maximum covalency is 4. Oxygen 1 and 2. Okay, 1 and 2. Nitrogen 3 and 4. Silicon 4. Okay, why? Because silicon atomic number 14, electronic configuration 284. तो मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ सिलिकॉन इज 4. नाइट्रोजन 3 भी बनाता है और 4 भी. ऑक्सीजन 1 and 2. ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26. तो रिक्वायर्ड 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक बॉन्ड या डबल बॉन्ड बना सकता है. कार्बन केवल 4. क्लोरीन 1 भी बनाता है 3, 5, 7. ओके, सल्फर 2, 4, 6, फास्फोरस 3 and 5. तो दीज एलिमेंट्स कैन बी सेंट्रल एटम, बट हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नॉट बी सेंट्रल एटम. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ऑक्टेट ऑफ corner atom must be complete. Octet of corner atom must be complete. And fifth, central atom can have 8 electron or more than 8 electron. Okay, octet of corner atom must be complete, and central atom can have 8 electron or more than 8 electron. Just suppose that in PCl3, okay, तो लिस्ट नंबर में हु इज द लिस्ट नंबर, कौन लिस्ट नंबर में है? फास्फोरस. ओके, तो फास्फोरस इज द सेंट्रल एटम एंड क्लोरीन इज द सराउंडिंग एटम विच इज प्रेजेंट अराउंड द फास्फोरस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? लुईस स्ट्रक्चर लिखेंगे. क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287. ओके, तो 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7. 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7. 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7. And phosphorus atomic number 15, electronic configuration 285. Balance cell has 5 electron. How many electrons? 5. 1, 2, 3, 4, 5. है ना? तो these are corner atom. These are a corner atom. Octet of corner atom must be complete. In Lewis structure, octet of corner atom must be complete. तो balance cell has 7 electron किसके? क्लोरीन के. ओके, तो क्लोरीन रिक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट दियर ऑक्टेट. तो सो क्लोरीन शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विथ फास्फोरस एंड कंप्लीट दियर ऑक्टेट 7, 1, 8. ओके, and this chlorine also shared 1 electron with phosphorus, and this chlorine also share 1 electron with phosphorus. Okay, so you can check 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8. ओके, कंप्लीट है. कॉर्नर एटम्स का ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया. अब फास्फोरस कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स. तो क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया फास्फोरस के साथ, तो फास्फोरस भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा क्लोरीन के साथ. ए भी क्लोरीन किया है तो ए भी फास्फोरस करेगा. ए भी क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन किया तो ए भी करेगा. तो कैसे? लाइक दिस, इस तरह से. अब आप चेक कर सकते हैं फास्फोरस पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8. इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी और इसका भी. ओके, बट सेंट्रल एटम कैन हैव 8 इलेक्ट्रॉन. जो सेंट्रल एटम है ये अपने बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन या 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन को भी रख सकता है. सेंट्रल एटम कैन हैव 8 इलेक्ट्रॉन और मोर देन 8 electrons. Okay, next point 6, central atom
tries to remain maximum covalency. सेंट्रल एटम ट्राइज टू रिमेन मैक्सिमम कोवैलेंसी. जो सेंट्रल एटम होता है वह हमेशा अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी को रखना चाहता है ना. एवरी सेंट्रल एटम ट्राइज टू रिमेन इन मैक्सिमम कोवैलेंसी या इन मैक्सिमम वैलेंसी. इफ पॉजिटिव चार्ज is there, if positive charge is there, for example NH4 plus H3O plus, you can see here is a positive charge है ना. These are ionic compound or ionic molecules. Okay, these are ionic compound है ना. If पॉजिटिव चार्ज इज देयर, अगर कंपाउंड पे पॉजिटिव चार्ज है तो इट विल बी ऑन सेंट्रल एटम. तो वह पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होगा? सेंट्रल एटम में. जैसे H3O है, जैसे O बॉन्ड H, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होगा? सेंट्रल एटम पर होगा. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इफ नेगेटिव चार्ज इज देयर, फॉर एग्जाम्पल कार्बोनेट आयन CO3 माइनस, ओके, NO3 माइनस नाइट्रेट आयन है ना. दीज आर पॉलीएटॉमिक आयंस. दिस इज आल्सो पॉलीएटॉमिक आयंस है ना. दिस इज नेगेटिव चार्ज. इफ देयर इज नेगेटिव चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज है सो इट विल बी ऑन कॉर्नर एटम. तो नेगेटिव चार्ज हमेशा कहाँ पे होता है? कॉर्नर एटम पे. जैसे मान लीजिए सपोज दैट CO3 इन CO3 माइनस कार्बोनेट आयन में. कार्बन इज ए सेंट्रल एटम बिकॉज कार्बन इन कार्बोनेट आयन, कार्बन प्रेजेंट इन लीस्ट नंबर ओनली 1. ओके, तो कार्बन इज सेंट्रल एटम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट अराउंड द कार्बन. ओके, तो कार्बन ऐसे स्ट्रक्चर बनता है. तो यू कैन सी कार्बोनेट आयन हैव 2 डबल माइनस चार्ज. ओके, 2 डबल माइनस चार्ज है. तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? कार्नर एटम से प्रेजेंट होंगे. नेगेटिव चार्ज अगर होगा तो कार्नर एटम पे होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो सेंट्रल एटम पे होगा. ओके, तो दीज आर सम रूल्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग लुईस स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स. चलिए अब हम लुईस स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करते हैं है ना. चलिए फॉर एग्जांपल लेते हैं. सपोज दैट कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मॉलिक्यूल. इन CO2 कार्बन इज अ सेंट्रल एटम बिकॉज कार्बन प्रेजेंट इन लीस्ट नंबर इन कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, कार्बन एंड ऑक्सीजन, देयर इज अ 2 oxygen. Okay, this is the arrangement of atom. Carbon atomic number 4 and oxygen atomic number 8. Electronic configuration 2 6, atomic number 6 sorry, and 2 4 है ना. Valence shell has 4 electron and valence shell has 6 electron. Okay, only valence electron participate in the making of Lewis structure, or you can say only valence electron participate in the formation of bond. Okay, so valence shell has 4 electron in carbon. This electron we will represent by Lewis dot symbol. Okay, and oxygen has 6 electron. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Oxygen required, देखिए oxygen required 2 electron for complete octet. So oxygen share 2 electron with
carbon, and this oxygen also required 2 electron for complete octet, so it also share 2 electron with carbon. Okay, both oxygen share 2 electron with carbon, तो carbon also share in same number of electrons with both carbon. Okay, like this. अब यू कैन चेक, अब इसको हम चेक कर सकते हैं, आप भी चेक कर सकते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं. दिस इज शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, ये भी क्या है, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन. और जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं ये हमारे क्या है, नॉन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, नॉन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन. और नॉन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज आल्सो नोन एज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. इनको हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी कहेंगे. तो 2 to 4 to 6 to 8, 2 to 4 to 6 to 8, और कार्बन का 2 to 4 to 6 to 8. ओके, जो शेयरिंग, जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वह दोनों एटम का होगा, कार्बन का ऑक्सीजन का भी, कार्बन का भी ऑक्सीजन का भी. दिस इज लुईस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, समझ में आ गया होगा आप लोगों को. वेरी गुड. नेक्स्ट एग्जाम्पल, सपोज दैट O2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, इन O2 मॉलिक्यूल इज 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन. दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑक्सीजन है ना. एंड बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन इज 6, 2 to 4 to 6, और यहाँ पे 2 to 4 to 6 रिक्वायर्ड 2 इलेक्ट्रॉन, 6 to 8, और इट इज शेयर 2 इलेक्ट्रॉन. दिस इज द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन. ओके, लुईस स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन. तो हियर द 2 शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, 1 शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन फॉर्म 1 कोवैलेंट बॉन्ड, 2 शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन फॉर्म 2 बॉन्ड. ओके, और 1 बॉन्ड हैज 2 इलेक्ट्रॉन. तो बॉन्डिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और दिस इज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. ओके, क्लियर. चलिए नेक्स्ट, O3 मॉलिक्यूल, O3 मॉलिक्यूल, ओजोन मॉलिक्यूल है ना. तो देयर आर 3 ऑक्सीजन, oxygen, oxygen and oxygen. First of all we will make Lewis structure of every oxygen है ना. या first we will write Lewis, या first we will write balance, या first we will represent balance electron of every oxygen. Okay, oxygen atomic number 8, electronic configuration 2 6, 2 to 4 and 2 6, 2 to 4 to 6, 2 to 4 to 6. ओके, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये शेयर करेगा कितना, 2 to 4 to 6 to 8. ओके, दिस ऑक्सीजन आल्सो रिक्वायर्ड 2 इलेक्ट्रॉन. अगर ये इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा तो ये भी 2 शेयर करेगा, तभी हमारा क्या बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड. कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स. ओके, और दिस इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ओके, अब यहाँ पे एक कंडीशन है, ऑक्टेट ऑफ बोथ ऑक्सीजन इज कंप्लीटेड है ना. 2 to 4 to 6 to 8, 2 to 4 to 6 to 8 कंप्लीटेड. अब एक ऑक्सीजन हमारा बचा हुआ है, लेफ्ट है, जिसका ऑक्टेट अभी नहीं कंप्लीट है, 2 to 4 to 6. एक कंडीशन, एक बॉन्ड होता है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना. ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपका 12th में एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहीं पे हम इसको पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे जानना जरूरी है इसलिए इसको बता दे रहे हैं हम. कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड रिप्रेजेंटेड बाय एरो, एक एरो से बनता है. ठीक है, कंडीशन क्या होती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की, जैसे कोवैलेंट बॉन्ड बनता है वैसे ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है.
और यू कैन से कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, बट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स, ओके। बट इन द केस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड सम कुछ चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंट है, जरा सा, बस उसी को हमें समझना है। सपोज दैट ए एटम है और हमारा बी एटम है, ओके। सपोज दैट ए एटम हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन दियर वैलेंस शेल एंड बी एटम हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन इन दियर वैलेंस शेल, ओके। तो ए एटम का ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की 2 कंडीशंस हैं। हाउ मेनी कंडीशन? 2 कंडीशंस फॉर मेकिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ओके। कोऑर्डिनेट अगर आप बॉन्ड आपको बनाना है तो 2 कंडीशन माइंड में रखिए। फर्स्ट क्या? पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? ऑक्टेट शुड बी कंप्लीट। ऑक्टेट शुड बी कंप्लीट। पहली बात तो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और दूसरी बात, एटम should have minimum 1 lone pair electron, minimum lone pair electron, ओके। तो ऑक्टेट फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए? ऑक्टेट शुड बी कंप्लीट होना चाहिए। किसका? एटम का। दूसरा, एटम शुड हैव मिनिमम 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, कम से कम 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उससे ज़्यादा चाहे जितना हो सकता है, लेकिन कम से कम 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ओके। अब देखिए ए एटम का बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, मतलब फर्स्ट कंडीशन को ये फॉलो करता है। सेकंड क्या है? एटम शुड हैव मिनिमम 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। देखिए ये सभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अभी बॉन्ड नहीं बनाए हैं, इसका मतलब कि सभी क्या है? लोन पेयर। लोन पेयर मतलब क्या? नॉन शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दोज इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं दोज इलेक्ट्रॉन्स who does not participate in the formation of bond। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ओके। तो लोन पेयर मतलब क्या? एक पेयर का इलेक्ट्रॉन हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर। अगर मान लीजिए शेयर पेयर्ड है, जैसे ये मान लीजिए शेयरिंग हुआ है ऐसे, तो ये हमारा शेयर पेयर हो गया, तब नॉन लोन पेयर, तब ये लोन पेयर नहीं होगा। जो बॉन्ड ना बनाए उसे हम क्या कहेंगे? लोन पेयर। तो इसके पास हम देख रहे हैं कितने लोन पेयर हैं? 1, 2, 3, 4। तो जहां हम एक की बात कर रहे हैं वहां एक से ज़्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक। इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है और इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है, ओके। अब ये क्या करेगा कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए किसके लिए? अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। और इसका एक ऑक्टेट भी कंप्लीट है, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए एबल है, बना सकता है ये, ठीक है। इसके पास दोनों कंडीशंस है। तो ये क्या करेगा? अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको दान कर देता है, मतलब इसके साथ ऐसे शेयर करेगा, मतलब कि वही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा और जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए जो बी एटम है ये अपना कोई भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में नहीं देता है, सिर्फ कौन देता है? ए एटम दे रहा है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो हमारा बनता है वह किसके थ्रू बनेगा? हमारा ए एटम के थ्रू, ठीक है। ए जो है वह बी को एक लोन पेयर मतलब एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के रूप में दे रहा है, साझे के रूप में दे रहा है। इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वह बी के भी हैं और ए के भी हैं। तो इसका कितना हो गया? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, ठीक है। ए का कितना हो गया? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। जो एटम, जिस एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होगा और जिसके पास कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे एटम को हम लुईस बेस बोलते हैं या इसी को हम डोनर एटम बोलते हैं, डोनर एटम, ओके। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है? डिफिशियंसी है, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको हम बोलते हैं क्या? लुईस एसिड।
लुईस एसिड बोलते हैं, और इसी को हम बोलते हैं एक्सेप्टर। क्या बोलते हैं इसको हम? एक्सेप्टर एटम, एक्सेप्टर एटम। ओके, अब देखिए दोनों का ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट। ठीक वही कंडीशन यहाँ पर भी है। ऑक्सीजन का देखिए ऑक्टेट कंप्लीट है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, ऑक्टेट भी कंप्लीट है। ये हमारे क्या है? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है और शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये हमारे क्या है? नॉन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। नॉन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब कि ये हमारे क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं? 1, 2। एक पेयर को हम लोन पेयर कहेंगे, तो 1 पेयर 2 पेयर, मतलब हमारे पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये क्या कर सकता है? इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, और इसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है। तो ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है इस तरह से। ठीक है, अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इस ऑक्सीजन के भी है, इसके भी हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ कौन शेयर कर रहा है? ये ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन ले रहा है। तो यहाँ पे कौन कर रहा था? ए एटम, और बी एटम ले रहा था। इसको अगर हमको रिप्रेजेंट करना होगा बॉन्ड से, तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम? ऐसे, ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बी। जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा उसके पास एरो का पीछे वाला सिरा होगा, एंड भाग, ठीक है, और जिसको इलेक्ट्रॉन देगा उसके साइड में एरो होगा। ठीक है, तो वैसे इसमें चेक करिए, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, इस दोनों ऑक्सीजन में 1, 2 के बीच में इक्वल शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, इक्वल शेयरिंग बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। हियर इज अ 2 शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, 1 शेयर पेयर, 2 शेयर पेयर। तो ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन दोनों के बीच में 2 शेयर पेयर मतलब 2 डबल बॉन्ड। और यहाँ पे ये सिर्फ ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बाकी के जो लोन पे इलेक्ट्रॉन्स है उसको एज सच ऐसे ही दिखा दीजिए। यहाँ पे एक बचा है और इसके पास 3 लोन पेयर, 1, 2, 3, 4। ओके, तो ये भी हमारा क्या है? लुईस स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं NH4+ आयन। दिस इज द आयन, ये हमारा आयन है ना। तो हु इज द सेंट्रल एटम इन NH4+ मॉलिक्यूल? नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम। व्हाई? बिकॉज नाइट्रोजन इन लीस्ट नंबर। नाइट्रोजन किस में है? लीस्ट नंबर में है। ओके, तो नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम, और देयर इज 4 हाइड्रोजन विच इज प्रेजेंट अराउंड द नाइट्रोजन। क्लियर? अब नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 5। ओके, एंड हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। ओके, तो चलिए 1 हाइड्रोजन 1, 1, 1। ओके, क्लियर? एंड नाइट्रोजन बैलेंस शेल हैज 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1, 2, 3, 4, 5, है ना। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन रिक्वायर्ड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन फॉर कंप्लीट डबलेट, फॉर कंप्लीट डबलेट, है ना। मतलब हाइड्रोजन वांट्स स्ट्रक्चर लाइक एज अ हीलियम, बिकॉज हीलियम इज अ स्टेबल एलिमेंट, है ना। तो हाइड्रोजन वांट्स स्ट्रक्चर लाइक एज अ हीलियम, इट मीन्स एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम इज 2 और एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। तो हाइड्रोजन वांट्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट डबलेट लाइक helium. Here is a not required to octet rule in the case of hydrogen. Okay, तो hydrogen share 1 electron with nitrogen and complete doublet like helium, and this hydrogen also share 1 electron with nitrogen and this also. Okay, but you can see in NH4+ ion there is a 1 positive charge. 1 positive charge मतलब कि this molecule loses 1 electron, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम, मैंने बताया है, ठीक है। क्योंकि चार्ज है तो चार्ज हमेशा मूव करता रहता है, वह यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, कहीं पर भी। बट हमको अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम किसी एक हाइड्रोजन को
कंसीडर करेंगे। मानिए सपोज दैट दिस हाइड्रोजन हैज़ नॉट एनी इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और ये 3 हाइड्रोजन्स शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विथ नाइट्रोजन, सो नाइट्रोजन आल्सो शेयर 1 इलेक्ट्रॉन टू ईच हाइड्रोजन। नाउ चेक, अब चेक करते हैं इसको, हाइड्रोजन 2 2 2, सबका स्ट्रक्चर किसकी तरह हो गया, लाइक एज हीलियम। और नाइट्रोजन 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया। अब मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला अपना फार्मूला लगाइए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैंने क्या बताया था, फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, ऑक्टेट शुड बी कंप्लीट। तो देखिए नाइट्रोजन का ऑक्टेट 2 2 4 2 6 2 8 कंप्लीट है। सेकंड कंडीशन क्या होना चाहिए, एटम शुड बी मिनिमम 1 लोन पे इलेक्ट्रॉन। अगर उसके पास कम से कम 1 लोन पे इलेक्ट्रॉन है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे जो है वो क्या है, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे these 2 electrons is lone pair electron are non shared paired electrons। तो ये हमारा लोन पे इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक लोन पे इलेक्ट्रॉन है और इसका ऑक्टेट भी क्या है, कंप्लीट है। तो ये क्या करेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के रूप में ऐसे देगा। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का भी है और नाइट्रोजन का भी है। अब चेक कर लीजिए 2 2 2 2 हाइड्रोजन का हो गया, नाइट्रोजन का 2 2 4 2 6 2 8। अब इसका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनेगा, एंड यहाँ पे इक्वल शेयरिंग बिटवीन 2 एटम, तो कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ पर भी कोवैलेंट बॉन्ड और यहाँ पर भी कोवैलेंट बॉन्ड। बट यहाँ पर क्या है, सिर्फ नाइट्रोजन शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन नहीं। क्यों कर रहा है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके पास मिनिमम 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके क्लियर, दिस इज द लुईस स्ट्रक्चर और दिस इज द बॉन्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ NH4+। ओके, चलिए अनदर एग्जांपल, चलिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल H3O+। के केस में क्या होगा, ऑक्सीजन इज अ सेंट्रल एटम, देखते ही आप पहचान जाएंगे, वाई, बिकॉज इन लीस्ट नंबर। और हाइड्रोजन इज अ सराउंडिंग एटम, H एंड H। ओके, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6। ओके, तो 2 2 4 एंड 2 6, हाइड्रोजन 1 1 1 है ना। बट दिस इज द हाइड्रोनियम आयन, इसका नाम है क्या, हाइड्रोनियम आयन। ओके, बट हियर इज अ 1+ चार्ज, तो एक प्लस चार्ज है जो पूरे एटम में या पूरे मॉलिक्यूल्स में रिवॉल्व करता रहता है। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन कहाँ पे, सेंट्रल एटम पे। तो हम इसको ऐसे करके बाहर दिखा देते हैं, मतलब इसी पे है, रिवॉल्व कर रहा है, इसलिए यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, अब हाइड्रोजन रिक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट डबलेट लाइक हीलियम, Av हीलियम कंप्लीट हो गया। ओके, तो ऑक्सीजन, बोथ हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विथ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन आल्सो शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विथ बोथ हाइड्रोजन, है ना। ये हमारा है H। अब एक पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं मानता हूँ कि इस हाइड्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया। ठीक है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, लेकिन इसका भी डबलेट क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। अब कंडीशन चेक करिए, हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर लाइक एज हीलियम 2 2 और ऑक्सीजन 2 2 4 2 6 2 8। ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट। ऑक्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज कंप्लीटेड। अब देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंडीशन बन रहा है कि नहीं, तो मैं देख रहा हूँ क्या कि ऑक्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज कंप्लीटेड, कंप्लीट है, 2 2 4 2 6 2 8 कंप्लीट है। ओके,
और इसका अगर देखें हम, ये जो हमारा हाइड्रोजन है इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और दूसरा कंडीशन क्या था, एटम शुड बी वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, मिनिमम सबसे कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो इसके पास ये कितने हैं, 1 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्टेट भी क्या है, कंप्लीट है। तो ये ऐसे अपना दे दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन इसका भी है और इसका भी डबलेट कंप्लीट हो गया। तो स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा हमारा, ऑक्सीजन, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड H, और यहाँ पे H, यहाँ पे H, बचा 1 लोन पेयर, और ये हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोनियम आयन। दिस इज द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। प्रैक्टिस करिए ढेर सारे एग्जाम्पल पर, और ढेर सारा आप क्या करिए, लुईस स्ट्रक्चर आप बनाइए। ओके, थैंक यू।